request everybody to please be seated straight in your place and with back straight, making Gyan Mudra with your index finger and the thumb and the palms facing towards the ceiling. Kindly put your hands on your thighs. With deep inhalation and prolonged exhalations. Okay, kindly focus in between your eyebrows and try to visualize Dhanvantari Bhagwan, your spiritual master, and the deity you worship regularly. And we shall chant the prayer, the first verse of Ashtanga Hridayam. Everybody must be knowing it. So do please chant with me. Om Ragadi Rogan Satatanushaktan Asheshakaya Prasrutan Asheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Shanti Shanti Shanti. Slowly release the mudra of your fingers, bring your palms together, rubbing them with each other, making a cup of the palms, place them on your eyes, move the palms on your forehead, on your head, on your neck, on your shoulders, on your chest, both flanks, remaining body, and please open your eyes and come back to this mundane world. आज के इस सत्र में सम्माननीय गणमान्य मंच एवं मेरे साथ जुड़े मेरे सारे हेतु मित्र आत्मीय जन जो कि वैद्यकीय व्यवसाय से जुड़े हैं, जितने भी विद्यार्थी जो कुछ तो जुड़े हुए हैं, कुछ और जुड़ना बाकी रहा है, इन सभी के भीतर रही हुई उस परम चेतना को मेरा नतमस्तक वंदन। आज का विषय जो मुझे कहा गया, हमारे महेश जी ने कहा कि सर आप जेरिएट्रिक पर बोलेंगे। मैंने बोला भाई बुड्ढे को बुड्ढे का बुलवा रहे हो क्या? ओके, यहाँ पर जो कुछ चित्र दिख रहे हैं आपको, अभी जो इटरा में परिणत हुई है वो संस्थाएं जितनी भी थी उनके चित्र हैं। अब नीचे जो चित्र है वो काइंड ऑफ हमारा ट्रेडमार्क है जामनगर का, ऐसा कहूंगा तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय को देख पाएंगे कि ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे होता था। गुरु शिष्य परंपरा और तद्विद्य संभाषा, हालांकि विग्रह भी कभी कभी होती है, पर तद्विद्य का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उसमें सीखना बहुत मिलता है। So when we go to the flashback, we all know that we started Om Bhadram Karneve Shrunuyama Deva Bhadram Pashyemakshabirjajatra Sthirairangaistushtvagum Sastanovi Yashema Deva Hitam Jadayu Om Swastina Indro Vradasravaha Swastina Pukha Vishwavedaha Swastina Staksho Arishtanemi Swastino Brahaspati Dadhatu। क्या ये चारों ओर से अच्छी चीजें हमारे तरफ आए, हमारे भीतर आए, और हम जब तक अच्छी तरीके से पूरे काम करते हुए शरीर के साथ जिए और जीते हुए हमको देवताओं ने जो सुपुर्द किया है वह काम करते रहें, इंद्र से हमें अच्छी चीजें प्राप्त हो, वहां से लेकर बृहस्पति से हमें अच्छी चीजें प्राप्त हो,
यानी कि स्वास्थ्य और पूर्ण स्वास्थ्य की एक संकल्पना हमने हर बार मांगी, उस कुदरत से मांगी, उस देवताओं से मांगी जो कि कुदरती शक्तियां हैं. The desire we have had right from the Vedic period, that those were the verses from Rigved, which we believe to be the first text of human literature. This one is the second one. Tat chakshur devahitam purasat chukramucharat pashyema sharada satam jivema sharada satagum shrunuyama sharada शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् विनो रोगाणां शारदी माता पिता च कुसुमाकर. And that is why that thought came from the time of Veda, where living for 100 Sharad Ritus. So if you live a healthy Sharad, that means that year has been a wonderful year. And again, we know that hita hitam sukham dukham ayustasya hita hitam, right? So we are talking about hit ayu, sukh ayu, and what is good for ayu. Now it is not only related to geriatrics. It is related to each and every person. And if each and every person takes care of the first motto of Ayurveda, swastasya swasthya rakshanam, aturasya vikara prashamanam cha. See, this is what I keep on telling at almost every stage and at every place, that the unfortunate influence of the contemporary medical science. Now, when I say contemporary medical science, it inculcates all the sciences which are contemporary at this moment of time, is that we have shifted our responsibility from our shoulders to the shoulder of the medicine or the doctor or the system of healthcare or the government. So now what we think is like, okay, it is our right, inborn right to be unhealthy, and it is the duty or the humble sovereign duty of the government and the government machinery to cure us. And because of that, what happens, that we have to bring up such programs like Har Din Har Ghar Ayurved. Actually, Ayurved used to be in every home, right? The grandmothers used to take care of the children, the mothers used to take care of the children, the grandfather and the nearby people. They seldom required to go to a Vaidya or a doctor. It was only in the grave conditions that they used to do that. Otherwise, people were, and the conditions of the health were taken care of at home. And wonderfully it was taken care of. But somehow the whole chain has broken, and again we are here at Har Din Har Ghar Ayurved. The scriptures say, okay, why do we want to live for 100 years? Dharmartha kama mokshanam arogyam mulamuttamam rogastasya bhartara shreyaso jivitasya cha, says Acharya Charak. That even if you want to do that purushartha chatushtaya, dharma, artha, kama, moksha, arogya is the root. And if arogya does not remain, then for such person, the disease condition should be removed. That is what the Swasthavritta Samuchaya says, that na jantu kaschid amaraha pruthivyam jagate jayate kvachit. Nobody is born immortal. Nobody remains immortal. Therefore, death is inevitable to all. But the diseases can be either stopped, prevented, or they can be cured. And that is why it should be done. Just now, our guest of honor, sir, was talking about Swabhavik Roga. And there are so many Swabhavik Roga, Kshuda, Nidra, Mrityu, Jara, because these all things come. While defining Ayu, Ayurveda said
शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याययायु उच्यते. A continuous combination of all these four, right from the time it occurs till the time the soul transits to some other plane. Nityag Anubandh is called life. So from the time it enters into that zygote till the time the person is declared dead physically, this continuous combination goes on, and because of that there is continuous activity going on in the body. Pratikshanam shiryate kshiryate anena iti shariram. No, how do we define life? Life is a journey from birth to death. So when this life is a journey from birth to death, and what is important is the time span which we have in between. You can see in the male one also, in the female version also, and there are different stages that through which we live. But what happens that we want to do so much in such a little segment of time, and that is why we always try to squeeze the time, throw a lasso on the time, which ultimately we cannot, because kaloti durati kramaha, you cannot win over time. You know, many times when I'm sitting in the department, people come and say, thank you very much, you gave us your time. Actually, I don't own time. That is what I reply them. Time owns me. Because you came at that time, the time was for you, so it was given to you. I don't own it. And time stays untied. You can't tie time. But unfortunately, we try to do that. And that is why what happens, you know, in our body. Okay, we all know this definition of Sushruta, Samadosha, Samagnishta, Samadhatu, Malakriya. But do we all really think that it is so easy to do it as we speak it? Can we be in an equilibrial state of dosha at any point of time? Think about the emotions affecting the dosha. Think about the vayoho ratri bhuktanam tentamatyadikakramat affecting the doshas. Think about the seasons. Think about so many other conditions. Even a touch can change it. The researchers have proved that a wrong blink of the eye can change your brain wave patterns. तब तो हम कुछ सोचें, कुछ करें, किसी को बोलें, कुछ खाएं, कुछ पिएं, कुछ पहने, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. It's a mega event for the body. तो किसी भी क्षण में बैलेंस में रहना एक बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है. और चूंकि हम ये नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो वात पित्त कफ के संदर्भ में हम इसको सोच सकते हैं, तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली शक्तियां हमारे भीतर है, वो सामंजस्य में नहीं रह पाती. और चूंकि वो सामंजस्य में नहीं रह पाती, डीजेनरेटिव प्रोसेसेस, प्रोऑक्सीडेशंस, वो सब बढ़ता जाता है. आप उसको चाहे जिस संदर्भ में सोचना चाहो. तो जब ये होता है तो क्या होता है, जरा आती है. तो जरा क्या है? जरा इज अ संस्कृत वर्ड फॉर ओल्ड एज. द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड इज नोन एज जरा. जीयति अनया जरा, यानी कि जब डीजेनरेटिव प्रोसीजर्स बढ़ती है शरीर में, तब शरीर की जो स्थिति होती है वो ज्रु धातु से आती है. और वायु पुराण तो उसको काल की बेटी कहता है. बताओ, डॉटर ऑफ डेथ. क्या? जरा. क्योंकि वो उसके साथ होती है. जरा आई तो फिर मालूम है कि अभी उसके पिताजी भी आएंगे कुछ समय के बाद. हमें ये समझ लेना चाहिए. एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट आयुर्वेद
and Indian tradition have considered lifespan to be of 100 years or more. ये 100 years और more इसलिए कहता हूं कि बाकी सब में 100 जगह की बात है, पर छांदोग्य उपनिषद ऐसा कहता है कि 116 साल का आयु होता है और उसमें वृद्धावस्था 48 years की होती है। आचार्य सुश्रुत जो कहते हैं वो कहते हैं 30 साल की होती है, 71 से 100 तक। पर परिहानि की जो अवस्था है वो 40 के बाद शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि डीजेनरेटिव चेंजेस यदि हमने सही तरीके से अपने को संभाला नहीं है तो 40 के बाद शुरू हो जाते हैं। आज तो हम ये देखते हैं कि 20-20 साल के बच्चों को भी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं साहब। लोग सडन कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं, इतने सीवियर ब्लॉकेजेस उस एज में होते हैं। जो 60+ ही हुआ करते थे, ऐसे प्रॉब्लम सब जल्दी हो गए। दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग in the way we are living, we are thinking, we are behaving and we are doing. सारी जगह पर, कामकाज की जगह पर भी, घर की जगह पर भी, समाज में भी हमने इतना सारा अपना व्याप बढ़ा दिया है। और खास करके तो अब ये जो 2 बजरबट्टू अपने हाथ में आ गए हैं, दुनिया को तो हमने मुट्ठी में कर लिया है, पर हम पता नहीं वहां से कहाँ निकल चुके हैं। तो चक्कर ये है कि हम अपने भीतर से निकल गए और इसकी वजह से वो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा वाला जो 100% कॉम्बिनेशन चारों का हर वक्त रहना चाहिए, ये स्थिति ही नहीं रहती है। तो वृद्धावस्था जल्दी आना भी शुरू हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ओल्ड एज के? धातु कम होती है, वीर्य कम होता है, इंद्रिय काम करना बंद करती है, सेंसरी एंड मोटर एपरेटस, बल कम होता है, उत्साह कम होता है, और उसके साथ साथ में खालित्य, वलित, कास, श्वास, ऐसे डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं अलग अलग सिस्टम्स के शरीर में। द कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव ऑफ ओल्ड एज इज दैट the organic process of aging is termed as senescence. The medical study of this process is known as gerontology, whereas the study of diseases afflicting the elderly is referred as geriatrics. The chronological age denoted as old age varies culturally and historically. देखिए ये भी मजे की बात है, क्योंकि इसका कोई एक यूनिफाइड एज नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति है। फिलहाल अपने देश में सीनियर सिटीजन 60 साल या 60 साल से ऊपर की व्यक्ति को माना जाता है, और करीब करीब 60 से 65 साल किसी किसी देश में 55 साल से लेकर के 75 साल तक का ये एज गैप होता है। Thus, old age is a social construct rather than a definite biological stage. हम किसी किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द की वो जितनी उम्र है वो लगते नहीं है। कम उम्र के लोग जो काम कर सकते हैं ऐसे काम वो कर लेते हैं बड़ी उम्र में भी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है खाने पीने के संदर्भ में, एक्सरसाइज के संदर्भ में, सोचने के संदर्भ में, और खास करके नई नई चीजों के साथ जुड़ने के संदर्भ में। आयुर्वेद में भी इस बात का उल्लेख है, क्योंकि जब हम अष्टांग आयुर्वेद की बात करते हैं, आज तो हम वो 14 अंग वाला आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, और हमारे शास्त्र ने अष्टांग आयुर्वेद की बात कही है। काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान, उसमें उन्होंने एक पूरा अंग जरा को डिनोट किया है, और जब जरा को डिनोट किया है तब ये जरा का कंसेप्ट चारों ओर से समझना चाहिए, मन से, शरीर से, इंद्रियों से, सब जगह से। ये देखिए जो मैं आपको कह रहा था कि समदोष, समाग्नि, समधातु, मलक्रिय, प्रसन्न आत्म, इंद्रिय, मन, ये जो कॉम्बिनेशन है हम इन सब चीजों का, यदि हम इसी को स्वस्थ कहते हैं तब तो बहुत कम % ऐसे लोग मिलेंगे जिसको हम स्वस्थ कह पाएंगे।
बड़े से बड़े हमारे डॉक्टर्स को लेकर के, पॉलिसी मेकर्स को लेकर के, इम्प्लीमेंटर्स तक के। और जो हमारी डायर्नल सिस्टम है, जो सर्काडियन रिदम्स की, उसके आधार पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम और फिर रात के साइकिल के संदर्भ में। मॉडर्न साइंस सर्काडियन रिदम्स को कुछ इस प्रकार से देखती है कि कौन से टाइम में शरीर कौन सा काम अच्छी तरीके से या ज्यादा संदर्भ से कर सकता है, या तो किस समय पर क्या नेचुरली ज्यादा रहता है फिजियोलॉजिकली, उसकी बात है। यही बात जो है आयुर्वेद में सर्काडियन रिदम्स जो मैं अभी बता के आया, वयो रात्रि भुक्तानाम वाला, इसका सोच है, सीजन का भी सोच है। और आयुर्वेद ने भी ये बता दिया है कि कौन सा समय किसका है, तो उस समय में क्या क्या करना चाहिए। ये कहने का मेरा यहाँ पर तात्पर्य यह है कि यदि हम बचपन से इन चीजों को समझे, मुझे यहाँ ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि पहले हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थी, तो बुजुर्ग घर में रहते थे। अभी भी कुछ फैमिलीज में ये फॉर्चुनेट सिस्टम है, पर ज्यादातर फैमिलीज हैं या तो रिमोट हो गए हैं या तो न्यूक्लियर हो गए हैं, तो वहां बच्चों को संभालने वाला कोई ज्ञानी नहीं है। भले ऐसा शारंगधर जी ने कह दिया है कि कुछ उम्र के बाद विजडम भी चली जाती है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो स्वास्थ्य को बरकरार रखने के जो नींव के जो भी हिदायतें होती थी, वो अपने बुजुर्गों से मिलती थी। अब ना तो पापा के पास टाइम है, ना तो मम्मा के पास टाइम है, बच्चा आया के भरोसे पड़ा हुआ है। अब उसका जो जरावस्था है, उसकी जरावस्था कैसी जाएगी आप सोचिए। क्यों? वो कुरकुरे पर जिंदा है, वो मैगी पर जिंदा है, वो पेप्सी थम्सअप पर जिंदा है। जब बहुत ऐश आ गया तो वो पिज्जा बर्गर उसके ऊपर आनंद ले रहा है, लड्डू खाता नहीं है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन आए हैं अभी, इसमें मैं भौगोलिक परिवर्तनों की, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आए क्लाइमेटिक चेंजेस, जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खाद, जो हमारी हवा में प्रदूषण है, इन सब चीजों की तो बात भी नहीं कर रहा हूं। तो आप सोच लीजिए कि हमारे ऊपर कितने प्रेशर्स हम ही ने बढ़ा रखे हैं, और उसके ऊपर से दिन रात काम की भागदौड़, उसमें भी कंपटीशन, हर दिन कोई नया प्रोग्राम, तो सुकून होता नहीं। सुकून होता नहीं तो फिर प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनत्व का प्रॉब्लम। अब प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनत्व नहीं है तो समदोष समाग्नि सब रहते हुए भी कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स साइकिल बन गया है, जिसकी वजह से इसको हमें देखना पड़ेगा। देखिए, ये हमारी दिनचर्या है। अभी फिर से किसी का हाथ हो गया ऊपर। हाँ, ये जो हमारी दिनचर्या है, इसमें इतनी सारी चीजें बताई हैं, करीब 25 के करीब चीजें हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें हम नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ ही चीजें करते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं अपने आप में एक थेरेपी है अलग से। आज का युग है वो इंडिविजुअल थेरेपीज का हो गया। जो चीजें पहले हमारी रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी, आज सब अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट हो गई है। जैसे म्यूजिक थेरेपी हो गई, मसाज थेरेपी हो गई, एरोमा थेरेपी हो गई, तो वॉकिंग थेरेपी हो गई, हंसना थेरेपी हो गई, ताली बजाना थेरेपी हो गई। आप देखिए, तो ये सब चीजें हमारे शास्त्रकारों ने अपनी दिनचर्या में बता के रखी है। इसका हमें सही तरीके से पालन करना चाहिए। जब 40 के ऊपर उम्र चली जाए तब तो इन चीजों को और करना चाहिए। और मजे की बात यह है, मैं आगे इसके विषय में थोड़ा कहूंगा, पर हमने स्वाध्याय की आदत को अपने में से छुट्टी दे दी है। योग जिसको स्वाध्याय करता कहता है, आयुर्वेद जो है उसको आत्मचिंतन कहता है या आत्मनिरीक्षण कहता है। और सुबह में उठ कर के पहला काम वही करना है, ऐसा शास्त्र ने कहा। और रात को सोने से पहले काम आखिरी जो करना है वो भी वही है।
यही शायद हम करते नहीं है। उठते भी व्हाट्सएप देखते हुए हैं, सोते भी व्हाट्सएप देखते हुए हैं कि आज लाइक कितने आए और मैसेज कितने आए। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे भीतर होने वाले जो सूक्ष्म परिवर्तन है उसको समझने में हम कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर बैठते हैं, और उसकी वजह से ये डीजेनरेटिव चेंजेस हम पर और ज्यादा हावी होते हैं। सीजनल साइकिल, खैर अब सीजनल साइकिल भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बट फिर भी अपने यहाँ पर कुछ क्लियर सिम्टम्स होते हैं हर सीजन के। तो यदि हम उसका भी पालन करें तो हम अपना मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है उसको सही तरीके से रख पाएंगे। क्योंकि अभी खाने पीने की भी बात हुई थी, देखिए सीजनल डाइट की बात है, सीजनल विहार की बात है, पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, और आपके शरीर का बल क्या है। आई डोंट नो वेदर we ourselves are actually doing this evaluation in every season. My humble advice is to every student that why don't you write this down, what is the condition in every season of your strength and of your other conditionings, because this will make you habituated to do it in the longer run. अब उसके सब पिलर्स आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यदि हम ये तीन को ध्यान में रखते हैं तो दोषों को समावस्था में लाने की जो प्रोसीजर है उसको हम कुछ हद तक हेल्प कर पाएंगे। आहार की जब हम बात करते हैं तो ये श्लोक तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, पर हम जानते हैं कि आहार का कितना महत्व है, ना सिर्फ इस जन्म के लिए, नेक्स्ट बर्थ के लिए भी। यानी कि जो अंतकरण मन और आत्मा के साथ जाएगा और सूक्ष्म इंद्रियां जाएगी, उसके प्रोपेलिंग में दूसरे बर्थ में वो कहाँ जा सकेंगे और क्या कर सकेंगे, वहां तक आहार का महत्व बताया हुआ है, जिसका आजकल हम कोई महत्व रख नहीं रहे हैं। आहार की जब बात करते हैं तो हम जानते हैं आहार विधि विशेषायतन है, आहार विधि विधान है, आहार विधि है, विरुद्ध आहार संकल्पना है। हम जानते हैं कि जब जेरियाट्रिक कंडीशन आती है या वृद्धावस्था आती है, उस वक्त में स्वाभाविकतया वायु की वृद्धि होती है, चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकृति का हो। यदि वायु प्रकृति वाले में वायु की वृद्धि होती है तो प्रोननेस उसकी बढ़ जाती है, बाकी में थोड़ी सी कम रहती है, वटेवर। पर वायु जब बढ़ती है तो वात वर्धक आहार विहार का सेवन कम हो। ये यहाँ पर मैं एग्जैक्टली कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक बात है। कौन सी जगह पर कौन रहता है, उसको ओक सात में क्या है, ये सब चीजें भी इसमें देखनी पड़ती है, और इसका ध्यान रखते हुए उसको वात वर्धक आहार विहार का सेवन कम से कम करना चाहिए। उसको भूखा ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग व्रत उपवास इत्यादि होते हैं ना, वो भी अपने प्रति किया हुआ एक गुनाह है, यदि शरीर को रास नहीं आ रहा है तो हमें ये भी देखना है कि जब वृद्धावस्था आती है तब इन चीजों को हम न करें, क्योंकि वैसे भी अग्नि की स्थिति थोड़ी विषम होती है वायु के बढ़ने से, तो पाचन की परिस्थिति भी थोड़ी विषम होगी। जब पाचन की परिस्थिति विषम है तो प्रीणन का काम जो रस का है, क्योंकि पाचन सही नहीं होगा, आम रस भी बन सकता है, तो आमोत्थ व्याधियां भी हो सकती हैं, और जो आपने पोषण लिया है वो शरीर को पूरा मिल ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो चयापचय और जरण होना जो आहार का, ये सारी प्रक्रियाएं थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए खाना आसानी से पच सके ऐसा हो, खाना न्यूट्रिशियस हो, खाना समय से हो, सर्व रसाभ्यासो बल कराणाम, एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम, काल भोजनम आरोग्य कराणाम, ये जो सारी बातें चरक संहिता सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में बताई हैं, और उसके साथ साथ में उपयोग संस्थान में जीर्णमश्नियात, उष्णस्नियात, स्निग्धमश्नियात, अजलपन, असंतन्मना, ये जो सारी बातें बताई है, नाति द्रुत नाति विलंबित, इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणे, इनका अपना अपना रोल है पचन के संदर्भ में। और सिर्फ पचन की बात नहीं है,
अंत में जो मन का पोषण होना है वो आहार के इसी जिस्ट में से होना है। तो यदि हमें मन दृढ़ और सही रखना है तो हमें आहार को पहले सही करना पड़ेगा, क्योंकि आहार ही मूल है अच्छे मन के लिए। निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्य बलाबलम। पुष्टि, कार्श्य, बल और अबल, सुख और दुख, वृषता और क्लिबता। अभी बात आई थी कि जब वृद्धावस्था आती है तो वृषता कम होती है, क्लैब्य आता है। अपना शास्त्र भी ये कहता है कि उम्र बढ़ने से क्लैब्य आता है। यदि निद्रा सही रहेगी, और हम जानते हैं कि जब व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी निद्रा कम होती जाती है, और ऐसे लोगों को दीवा स्वाप करने का भी विधान हमारे शास्त्रों में है। पर दीवा स्वाप कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी उनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद लोग वाम कुक्षी को ये मान लेते हैं कि दोपहर को खाना खाने के बाद सो जाना चाहिए, और खास करके हम जहाँ रहते हैं वहां के इलाकों में तो ऐसा ही है कि दोपहर को खाना खाने के बाद हमको आधा घंटा तो सो ही जाना चाहिए। तो इसकी वजह से कफ की विकृति होती है, आम की विकृति होती है, अग्नि की विकृतियां होती है, ग्रहणी विकृत होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक दिन करने से नहीं होता, पर जब ये रूटीन हो जाता है तब ये जाकर के अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, और फिर कई सारे स्रोतसों की व्याधियां पनपती हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को मैं इस प्रकार से समझता हूं कि आप सारी चीजें सही तरीके से करें। उसमें एक बात वीर्य रक्षा वाली भी आ जाती है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से करना चाहिए। तो सिर्फ वीर्य रक्षा ही ब्रह्मचर्य ऐसा मानने की बजाय सारे काम सही तरीके से करें, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है नितांत सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ, एंड चर्य का मतलब होता है वॉट एवर यू डू टू रीच टू दैट गोल। फिर धारणीय और अधारणीय वेग का हमारा कंसेप्ट है। वृद्धों को ये बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे हमारी बात हो गई थी, वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेसिया हो जाता है, फिर कई बार उदर के प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो डायरियल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कई बार अपान का प्रॉब्लम हो जाता है, खास करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि डाइजेशन गड़बड़ होता है। तो इस प्रकार के जो अधारणीय वेग है उनका धारण न करें, उनको भी ये समझाएं वृद्ध व्यक्ति को कि आप ये ना करें। और जो मन के वेग हैं, काय के वेग हैं जो कि धारणीय हैं, और वाचा के वेग है जो कि धारणीय है, उनको धारण करना भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सब लोगों को ये अनुभव है कि दादी माँ या दादाजी है वो बहुत टोकते हैं, वो हमको कुछ करने नहीं देते वगैरह वगैरह, because there is a gap in generation, there is a gap in the thought processes. So the elderly should be counseled to be with the new age group and to be with the new thoughts and try to imbibe the good parts and to explain the younger ones that what are the good parts in this. वाचिक वेग, मानसिक वेग, यहाँ मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हम सब ये जानते हैं। अब जेरिएट्रिक प्रॉब्लम्स इन जनरल यदि हम देखें तो क्या है, इश्यूज रिलेटेड टू वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, इश्यूज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये साइकोलॉजिकल वेलबींग में तकलीफ सबसे ज्यादा ये आती है कि इंसान के पास जब तक वो काम कर सकता है तब तक सत्ता है, जब तक वो कमाता है तब तक उसके पास पावर रहती है। फिर जैसे रिटायरमेंट की लाइफ आती है तो काम करना बंद हो जाता है, सत्ता का माहौल चला जाता है, और फिर एक जगह पर रहने की बात आती है तो जो डाइवर्जन्स मिलते थे वो मिलना बंद हो जाता है, और कई बार ये चीज नागवार गुजरती है। इश्यूज रिलेटेड टू सोशल रोल्स एंड सिक्योरिटीज, हमारे यहाँ पर फैमिली सिस्टम बहुत अच्छी है, पर जो बुजुर्ग हैं उनकी सोशल सिक्योरिटीज का बहुत बड़ा इश्यू है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं चारों ओर, तो उनके सोशल रोल्स में भी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम है। हमें चाहिए कि उनके साथ रहें, उनको साथ दें, और शायद कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हो सके जहां कुछ कार्यक्रम हम वृद्धाश्रम में भी करना आवश्यक हो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम with the elderly people and need for proper coping and rehabilitative approach.
क्योंकि इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो इनका रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है। एक तो बहुत बड़ा रिहैबिलिटेशन ये है कि उनका जो एक्टिव रोल था सोसाइटी में, अब चाहे काम के संदर्भ में हो चाहे घर में हो, वो रोल बदल जाता है। और जैसे वो रोल बदल जाता है उनको ऐसे लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ रहा नहीं, ना पैसा ना बच्चे रहे ना कुछ। तो इसके लिए उनको काउंसलिंग करना चाहिए और इसकी एक अच्छी व्यवस्था हमें अरेंज करनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो डाइटरी चेंजेस हैं उसकी वजह से भी मानसिक चेंजेस हम ला सकते हैं। जब हम एल्डरली पीपल की बात करते हैं तो उसमें हमें दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं अमूमन। One type of elderly people are physically fit, they are active, they are willing, they are well acquainted with everything, they are ready to practice, they are resourceful, and there is no space issues. क्योंकि आजकल क्या है कि घर भी छोटे हो गए तो कई बार स्पेस का, जगह का भी इश्यू आ जाता है, उसकी वजह से भी कई सारे प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करने पड़ते हैं, खास करके बुजुर्गों को, और इसीलिए फिर वो घर के बाहर रहना पसंद करते हैं। पर इस प्रकार के जो फिट लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। जो लोग उस रिटायर्ड लाइफ में अपने आप को फिट नहीं रख पाते उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो कि अक्वेंटेड नहीं है ऐसी चीजों से, अनविलिंग है, जिनमें लैक ऑफ एंथुसियाज्म है, उत्साह की कमी है, फिजिकल लिमिटेशंस हैं, शरीर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ मोटिवेशन, वो कुछ करना नहीं चाहते, लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्पेस, उनको अपनी जगह नहीं मिल रही है, लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेमोरी इश्यूज, क्योंकि मेमोरी का इश्यू भी तो होने वाला है और उसकी वजह से बुजुर्गों को बहुत सुनना पड़ता है यंगर जनरेशन से। तो इन सब चीजों की वजह से अलग अलग प्रकार के इश्यूज उनको देखने को मिलते हैं। तो क्या आयुर्वेद में उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं? तो हमारे पास रसायन है। रसायन में यदि हम देखें तो बहुत समय से, वेदों के समय से ये हमें देखने को मिलती है। चरक चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय के 4 जो हिस्से हैं उनमें रसायन के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में 27 से 29 चैप्टर जो चिकित्सा स्थान के हैं, अष्टांग हृदय और अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र में इसको बताया गया है। तो द इफेक्ट ऑफ रसायन इज दैट नंबर 1 इट विल गिव डायरेक्ट न्यूट्रिशन टू द पीपल, रस धातु को पुष्ट करेगी ताकि बाकी की धातुएं अच्छी तरीके से बन सके। साथ ही साथ में अग्नि को सही करने वाली जो प्रक्रिया है वो भी रसायन में है। और उसके अलावा जैसे हम आचार रसायन की बात करें तो मॉड्यूलेटिंग द लाइफस्टाइल एंड द डेली रेजिमेंट, उसकी भी बात है, उसको भी रसायन की उपमा दी हुई है। तो इस तीनों प्रकार से यदि हम देखें तो शरीर में न्यूट्रिशन डायरेक्ट बढ़ा करके, शरीर में जो भी आहार जा रहा है उसका जो पाचन है और उसका जो जरण है उसको बढ़ा के, और जो लाइफस्टाइल है उसको रेगुलेट करके हम रसायन से काम ले सकते हैं। अब जैसे हमारी बात आई हुई थी कि शरीर में कुछ ना कुछ कमी होती है, आचार्य शारंगर ने ये बहुत अच्छा बताया है कि जब आपका पहला डिकेड है लाइफ का 0 से 10 इयर्स, उसमें बाल्यावस्था आपकी जाती है। दूसरा डिकेड है उसमें आपका ग्रोथ जाता है, मतलब ग्रोथ हो जाता है, तब तक हुआ तो हुआ, उसके बाद नहीं होता। थर्ड डिकेड में आपकी ब्यूटी जाती है, क्यों? क्योंकि आपको एक्टिव लाइफ आपकी हो जाती है तो धूप में बहुत घूमना पड़ता है। फोर्थ डिकेड जब होता है तो इंटेलेक्ट, मेधा आपकी कम होती है क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स बढ़ जाते हैं जिंदगी के। फिफ्थ डिकेड में त्वक, सिक्स्थ डिकेड में दृष्टि, सेवेंथ डिकेड में शुक्र, एट्थ डिकेड में विक्रम दैट मीन्स द स्ट्रेंथ, नाइन्थ डिकेड में बुद्धि, और 10th डिकेड में आपकी कर्मेंद्रियां, यानी कि जब आप 100 साल के होने को आते हैं तब कर्मेंद्रियां जो हैं वो काम करना या बंद करती है या पूरा कर नहीं सकती, ऐसी बात बताई। शारंगधर जी ने बताया कि हर 10 साल में आप कुछ ना कुछ तो खोते हैं, तो यदि उसको बरकरार रखना है तो रसायन का उपयोग करना चाहिए। रसायनों की बात करते हैं तो द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत दो प्रकार के रसायन हम समझ सकते हैं। जैसे आचार रसायन है वो अद्रव्यभूत है, बाकी जो कोई चीज आप खाते हैं या किसी चीज का उपयोग करते हैं तो वो द्रव्यभूत रसायन है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से
कुटी प्रावेशिक रसायन जो कि इंडोर प्रैक्टिस चलती है, जहां पेशेंट को रखा जाता है त्रिगर्भा कुटीर में, और वातातपिक रसायन जो कि आउटडोर रिजुविनेशन की प्रोसीजर है, जहां पेशेंट को इंडोर रखा नहीं जाता पर फिर भी उसको रसायन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूज, उसको क्या चाहिए आपको रसायन से, तो काम्य रसायन की संकल्पना आचार्य सुश्रुत ने बताई है। उसमें 3 काम्य की बात बताई है। प्राण काम्य विच विल प्रमोट लॉन्गेविटी एंड लाइफ स्पान, मेधा काम्य विच विल इम्प्रूव द मेंटल फैकल्टीज एंड द इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, जहां हम मेध्य रसायन की बात करते हैं। श्री काम्य विच विल इम्प्रूव द ब्यूटी एंड लस्टर ऑफ द बॉडी, जो कॉस्मेटिक पर्पज से काम आता है। दूसरा है नैमित्तिक रसायन, which is adjunct for cure of diseases like Shilajatu, Bhallatak, Tuvarak, etc. And third one is अजस्रिक रसायन, जो कि रोज आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध है, घी है, वो हम नितांत खाते हैं अपने भोजन में। तो इस प्रकार से भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। बेस्ड ऑन प्रभाव, क्या प्रभाव होगा रसायन का, संशोधन होगा या संशमन होगा, इस प्रकार का भी प्रकार है रसायन का। एज वाइज डिजेनरेशन जो होता है, जो मैंने पहले बताया, उसमें कुछ खास रसायनों की संकल्पना शारंगधर के पूर्व खंड में देखने को मिलती है कि पहले 10 साल है उसमें वचा और स्वर्ण भस्म ले सकते हैं, 10 से 20 में अश्वगंधा और बला को ले सकते हैं। क्या कम होता है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बता दिया। तीसरे दशक में आमल की लोह भस्म का उपयोग कर सकते हैं। चतुर्थ में शंख पुष्पी ज्योतिषमती ब्राह्मी कर सकते हैं। पंचम में भृंगराज प्रियल ज्योतिषमती का कर सकते हैं। छठवें में त्रिफला शतावरी ज्योतिषमती का कर सकते हैं। सातवें में अश्वगंधा कपिकच्छु कर सकते हैं, क्योंकि वहां शुक्र पोटेंसी की बात आती है। फिर 8वां जो है वहां बला और आमल की का कर सकते हैं। 9वां जो है वह ब्राह्मी और शंख पुष्पी का कर सकते हैं। और जो 10वां डिकेड है उसमें फिर से एक बार अश्वगंधा और बला, क्योंकि वहां उस वक्त बल प्राप्त करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारा शरीर धातु से बनता है, तो धातुओं के विकारों के लिए या धातुओं की पुष्टि के लिए भी कुछ खास रसायन बताएं। जैसे रस के लिए खरजूर है, द्राक्षा है, काश्मीरी यानी कि गंभारी है। रक्त है उसको, उसके लिए आमल की है, भृंगराज है, पलांडु है, लोह है। मांस धातु के लिए बला है, नागबला है, अश्वगंधा है। मेद के लिए गुग्गुलु है, शिलाजित है, अमृता है और हरितकी है। अस्थि के लिए लाक्षा है, शुक्ति है, शंख है। मज्जा के लिए वसा, मज्जा, लोह। और शुक्र के लिए आत्मगुप्ता यानी कपिकच्छु, शतावरी और मुसली, ये जो है वो रसायन के संदर्भ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन व्यक्ति की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए उसमें से क्या, कितना और कैसे देना, उसके लिए व्यक्ति को एक वैद्य के पास जाना चाहिए और वैद्य को उस व्यक्ति को देते वक्त इसको सोचना चाहिए। Then comes certain disorders which are related to old age, तो उसमें भी कुछ रसायनों की विशेष बात की है। जैसे नेत्र रोग में ज्योतिषमती, त्रिफला, शतावरी, ये नैमित्तिक रसायन है, यानी कि जो उस डिजीज की जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ में यदि हम इन रसायनों का उपयोग करते हैं एडजुवेंट्स के संदर्भ में, तो हीलिंग जो है वो जल्दी होगा। और दूसरी बात यह है कि उसका जो पावर है वो भी बढ़ेगा। तो नेत्र रोग में ज्योतिषमती, त्रिफला, शतावरी, यष्टिमधु। हृदरोग में शालपर्णी, अर्जुन, गुग्गुल, पुष्करमूल। त्वक रोग में तुवरक, भल्लातक, विडंग, सोमराजी और गंधक। राजयक्ष्मा में रसोन, नागबला, शिलाजतु और पिपली। पांडु में लोह, माक्षिक और मंडूर। श्वास में अगस्त्य रसायन, भल्लातक, शीरिष और हरिद्रा का प्रयोग। आमवात में भल्लातक, कुपीलू और रसोन का प्रयोग। वात व्याधियों में रसोन, गुगुलू, बला और नागबला। मधुमेह में शिलाजतु, आमल की, हरिद्रा, गुडूची, जम्बू और मेथी का। मेदो रोग गुग्गुलू, हरितकी, पुष्करमूल और वचा। रक्तगत वात
जिसमें रसोन, बला, रासना, सर्पगंधा, अश्वगंधा। अब रक्तगत वात को अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग प्रकार से मॉडर्न के साथ कंपेयर करते हैं, कुछ लोग उसको हाइपरटेंशन के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो ये थोड़ा देखना चाहिए कि इसमें से हम किस चीज को कब लेंगे। उन्माद में शंखपुष्पी, ब्राह्मी, मंडूक पर्णी और यष्टि मधु इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जेरिएटिक एज ग्रुप। चरक आचार्य ने ये बताया, योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम मोक्ष निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक। और हठ प्रदीपिका ऐसा कहती है, युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेशु अतंद्रित। दैट मीन्स कि योगाभ्यास का, मेडिटेशन का, धारणा, ध्यान, इन सब चीजों का अभ्यास उस उम्र में ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो 4 आश्रम हमारे बताए हैं, तो वान प्रस्थाश्रम से एक वृद्ध व्यक्ति को समझना चाहिए कि धीरे धीरे उसको संसार से अलिप्त होते जाना है, ताकि जो आखिरी 25 साल हैं वो वैराग्य में, संन्यास आश्रम में वो बिता सके। जब आप समाज के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रखोगे तो पीड़ा भी कम होगी और आप आत्मोन्नति का काम कर सकोगे, इसलिए योगाभ्यास भी करना चाहिए। तो कैरी होम मैसेज हमारा ये है कि यदि जेरिएट्रिक केयर की हम बात करते हैं, तो जैसे आचार्य चरक ने और अष्टांग ने बताया, नरोहिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष वसक्त दाता सम सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोग। भगवत गीता कहती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये एक श्लोक मुझे नया दिया, आज ही शायद आया था वो, आयुष्यम भोजने जीर्णे वेगानाम च अविधारणे ब्रह्मचर्यम अहिंसा च साहसा नाम च वर्जनम। यदि ये हमने किया तो वृद्धावस्था में प्रॉब्लम्स कम होंगे, और यदि हम जो बुजुर्ग हैं उनको इन सब चीजों को करने के लिए समझा सकते हैं और करवा सकते हैं, तो उनको या तो प्रॉब्लम होंगे नहीं, और यदि प्रॉब्लम हुए हैं तो उसको आसानी से हम ठीक कर पाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।